Good morning, students. Welcome again here in this video tutorial. Students, as you all of you know that we are revising our chapter number 4 of your history, the Mughal Empire, and this is your part 2. Our next topic is Mughal relations with other rulers. You know, the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. मुगल ने काफ़ी कैंपेन करे अगेंस्ट उन रूलर्स के जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे. बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलेंट्रली. काफ़ी मुगल्स ने इतने कैंपेन्स उन्होंने जब किए अगेंस्ट उन रूलर्स के खिलाफ, बट कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल्स के जो पावरफुल थे उनको अपने आप ही वॉलंटरीली ज्वाइन कर लिया. द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. Who? Yes, the Rajput are a good examples for this. And many of them married their daughter into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. राजपूत तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर दिस. राजपूत ने क्या करा, अपनी ही डॉटर की जो थी मुगल फैमिली में मैरिज करी. So one of example, the mother of Jahangir. Who? The mother of Jahangir was a Kachwa princess. Whose princess? Mother of Jahangir? Yes. She was a Kachwa princess, daughter of the Rajput ruler of Amber, modern day now at Jaipur. The mother of Shah Jahan was a Rathore princess. Okay, whose mother? The mother of Shah Jahan was a Rathore princess, daughter of the Rajput ruler of Marwar, Jodhpur. Then after it, Rajputs received high position in Mughal court. राजपूत थे, उन्होंने काफ़ी हाई पोजीशन कहाँ वो करी उन्होंने. yes, they received high position in Mughal court. The Sisodia Rajput of Mewar received to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals. Even अगर जो रूलर्स थे वो डिफीट भी हो जाते थे मुगल से, बट आफ्टर दिस यस दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स. उसके बाद भी मुगल्स उनके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर करते थे. एंड देन दे गिवन their land Watan back as assessment Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains. Many defeated rulers were given their land वतन back as assessment वतन जागीर. काफ़ी जो रूलर्स डिफीट हुए मुगल से उनको तब भी उनका जो वतन था, उनको उनका जो लैंड था वो वापस दिया मुगल ने. उन्होंने कहा ये नाउ ये आपका ही है, आप हमारे अकॉर्डिंग ही इस पर वर्क करोगे और हमें रेवेन्यू एंड ऑल देते रहोगे. बट whose Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. But औरंगजेब ने क्या करा, किसकी इंसल्ट करी, शिवाजी की, when he came to accept Mughal authority. Our next topic is Mansabdars. Who were Mansabdars? कौन थे Mansabdar? As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of the people. Who recruited? Yes, the Mughal recruited diverse bodies of the people. From a small nucleus of Turkish nobles or Turnish, they included Iranis, Indian Muslim, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdar. So, जो किसकी सर्विस ज्वाइन करते थे, मुगल की सर्विस. यस, दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार. सो हु वर मनसबदार? Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdar. The term Mansabdar refers to an individual who holds a mansab. Mansabdar क्या था, एक टर्म था जो क्या रिफर करता है, who holds a mansab, meaning a position or rank. What's the meaning of mansab? Mansab meaning a position or rank. And mansab
Mansabs were appointed from diverse background. From which time? Which background? Yes, from diverse background. Example, some of example: Turkish, Irani, Afghans, Rajputs, and Marathas, etc. अब आपका मनसबदार क्या होता था? मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम? सो इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम. कौन सा सिस्टम था? जस्ट लाइक इन योर क्लास. आपने क्लास में देखा है एज अ मॉनिटर होते हैं पॉइंट. सो सेम एज जो उनको रैंक ज़्यादा मिलता है. सो इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फर्स्ट रैंक, देन मुगल्स टू फिक्स. क्या करते थे ये मुगल्स? बिल्कुल फिक्स करके रखते थे. फर्स्ट रैंक, देन सेकंड सैलरी, देन थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट नंबर रैंक पे क्या होता था? देन आफ्टर सेकंड नंबर रैंक पे क्या होता था? सैलरी. एंड थर्ड नंबर रैंक पे मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात. व्हाट इट कॉल्ड? जो भी उनकी रैंक एंड सैलरी जो भी डिटरमाइंड होती थी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, उसको क्या बोलते थे? जात. यानी कि उनकी जो भी वैल्यू थी, जितनी भी उनको सैलरी मिलती थी, वो क्या डिटरमाइन करती थी? उनकी जात. द हायर द जात, द हायर नोबल पोजीशन एंड सैलरी. सो जितनी हायर उनकी जात होती थी, वैसे ही उनकी क्या होती थी? हायर नोबल और उनकी पोजीशन और सैलरी. Nobles with a jat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000. अब जिसकी हायर रैंक है तो उसकी जात कितनी काउंट होती थी? उनकी जो सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू में थी वो 5,000. देन अब जिसकी लो है, देन उसकी 1,000. In Akbar's reign, whose reign? In Akbar's reign, there were 29 mansabdars. How many mansabdars in Akbar's reign? Yes, there were 29 mansabdar with a rank of 5,000 zat. How much? कितना था उनके उस टाइम पे? 29 मनसबदार थे और जिनकी रैंक कितनी थी? 5,000 जात. By Aurangzeb's reign, the number of मनसबदार had increased. अकबर के टाइम पे 29 and then after it औरंगजेब के टाइम पे कितना? How much? 79. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स फंक्शंस ऑफ मनसबदार. अब मनसबदार तो हो गए बेटा कि उनकी रैंक के हिसाब से ही उनको काफ़ी सैलरी मिलती थी, उनको ज़ात मिलती थी जो उनकी पोजीशन और रैंक थी. बट ये मनसबदार जो थे, रूलर्स ने, मुगल रूलर्स ने क्यों अपॉइंट किए हुए थे? सो उनके क्या फंक्शंस थे? द मनसबदार वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवरी मैन टू इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द रूलर. उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कभी वॉर हो जाए हमारे उसमें तो रेन में, तो एकदम से ये मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है बिल्कुल रेडी रहें ताकि जो है वो प्रोवाइड करा सके. क्या? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती थी. स्पेसिफिक नंबर जो कैवरी मैन थे और वो थे, उनको वो इंक्लूड करके रखें ताकि मिलिट्री जो स्टैंड थे वो रूलर की इंक्रीज हो. एकदम से कोई वॉर हो जाए तो उसके लिए अवेलेबल हो जाए पीपल. कैवरी मैन वर रजिस्टर्ड एंड हॉर्सेस वर ब्रांडेड. जो कैवरी मैन थे उनको रजिस्टर्ड करके रखा जाता था और जो हॉर्स थे वो किसके हॉर्स हैं किसके नहीं है वो भी सारा ब्रांडेड रखते थे. वो मनसबदार, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवरी मैन, कि कितने सवार हैं कितने कैवरी मैन हैं उनकी मिलिट्री में, उनकी ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एंड देन रिसीव मनी टू पे दैम एज सैलरी. यस, और उनको मनी भी ये पे करते थे. Mansabdar received their salary as revenue assessment, not land itself called Jagir. Yes, what Mansabdar received? Yes, Mansabdar received their salary as revenue assessment. किसके उसमें receive करते थे? revenue assessment में. Then they were not the owners of Jagir. वो ओनर्स नहीं थे जागीर के. दे हैड राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर जागीर. बट दे हैड राइट, यस, मनसबदार हैड राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम जागीर, बट दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ जागीर. सो दे ओनली रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असेसमेंट, नॉट लैंड itself. Mansabdar did not reside or administer their jagir. They served in some other part of the country.
These Jagis were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdar. And even Mansabdar, unko, they only had right to the revenue of their assessment which was collected for them by their servant, who collected from them by their servant, while the Mansabdars themselves served in some other part of the country. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. Which was the main source of income available to Mughal rulers? Yes, it was tax and on the produce of peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman of the local chieftain. रूलर्स को कौन पे करता था टैक्स? जो वहाँ के पीजेंट्री थे, वहाँ के जो किसान थे. आफ्टर दिस वो ऐसा तो नहीं था कि डायरेक्ट जाके जो है वो मुगल एम्पायर को दे देते थे या मुगल रूलर को अपना टैक्स. सो द मुगल यूज वन टर्म. तो मुगल ने क्या एक टर्म यूज करी बेटा? जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries whether they were local headmen of village or powerful chieftain. अब जो पीजेंट थे वहाँ के किसान थे, वो अपना टैक्स पे करते थे. वहाँ से उनके जो अबव हेडमैन थे या पावरफुल चैप्टेन्स थे उस विलेज के. सो जो वो पावरफुल और लोकल हेडमैन थे और पावरफुल चैप्टेन्स थे, उनको मुगल ने क्या कहा? जमींदार. Which term the Mughals used? Yes, the Mughals used one term, zamindar. Akbar's revenue minister. Whose revenue minister? Akbar's revenue minister named Todarmal. What? Todarmal carried out a careful survey of क्रॉप रियल्स. उन्होंने क्या करा? टोडरमल जो थे अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अच्छा पूरा सर्वे किया जो क्रॉप से रिलेटेड था. क्रॉप की कौन सी क्वालिटी है, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड. हाउ मच टाइम? गेस. उन्होंने पूरा एक सर्वे रखा 10 years तक कि क्रॉप की कौन सी क्वालिटी है, यील्ड्स कौन सी है, प्राइसेस कौन सी है, कैसी प्राइसेस रखनी चाहिए, और कल्टिवेशन एरिया. हाउ मच टाइम? फॉर अ 10 years period from 1570 to 1580. This is good, beta. This is important. From 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in कैश. अब ये सर्वे हुआ 10 years तक. आफ्टर दिस इज जब ये डाटा कलेक्ट हुआ, कितनी क्रॉप्स हो रही है, कितना कल्टीवेशन हो रहा है, इसी के बाद टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. क्रॉप को जो है जो टैक्स में फिक्स किया गया, जो क्रॉप का जो टैक्स था, एंड वेयर ऑन इन कैश. सो नाउ वर्ड कम हियर, वन न्यू वर्ड कम हियर, जब्त. जब्त वाज अ रेवेन्यू सिस्टम. जब्त क्या था? पूरा एक रेवेन्यू सिस्टम था टैक्स पे करने का, अंडर विच each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for the individual crops. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ इस क्रॉप्स पर इतना ही पे किया जाएगा. सो एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था कि जो एरिया था, एक एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि मान लीजिए एक एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट में जितनी क्रॉप्स में लागत आ रही है, जितनी क्रॉप्स में उसकी इनकम हो रही है, उस क्रॉप्स में कितना उसको फ़ायदा हो रहा है, उसी हिसाब से वहाँ का क्या टैक्स किया गया, फिक्स किया गया. वैसे ही दूसरे प्लेस का. तो ये क्या था? ये जब्त वॉज अ रेवेन्यू सिस्टम अंडर विच ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल. ईच प्रोविंस को किस में डिवाइड कर दिया गया था बेटा? रेवेन्यू सर्कल में, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग रेट जो है उन्हें टैक्स में पे करने थे. As you all of you know that Akbar's revenue minister Todarmal carried out a careful survey of crop yields for a 10 years period. On the basis of this data, जो भी वो डाटा कलेक्ट करा उन्होंने उस सर्वे के बाद, जो भी डाटा उन्होंने कलेक्ट करा उस सर्वे के बाद, सो ईच क्रॉप की कैश के हिसाब से टैक्स और रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया. And it was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful account. But ये जब्त का जो सिस्टम था कि उन्होंने पूरे क्रॉप्स के हिसाब से ही वो रेवेन्यू लगाया, टैक्स लगाया, उसके बाद वो ज़मींदार कलेक्ट करते थे और फिर वो मुग़ल डिपार्टमेंट को पे करते थे. बट ये सारे इलाके में बेटा नहीं हो पाया सर्वे. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल. Even
In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Yes, who? Exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. कई जगह जब exploitation भी हो जाता था तो उसके उसमें भी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स का rebellion भी create हो जाता था. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी. समटाइम्स क्या है कि पीजेंट्स और उसमें जो जमींदार थे वो भी रेबेलियन कर देते अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के. दीज पीजेंट्स रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. ये जो एक पूरा सिस्टम चल रहा था बेटा अकबर के टाइम पे बिल्कुल फिक्स था. बट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो है ड्यूरिंग औरंगजेब रेन. बट औरंगजेब का जो पीरियड था जो उन्होंने रूल करा, रेन मीन्स पीरियड ऑफ द रूलर्स. सो नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज टू 79. कितने नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज हुए औरंगजेब के टाइम पे? 79. एज अ रिजल्ट दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर. Actual revenue collected from Jagir was often less than the granted sum. As a result, Jagirdars or Mansabdars started collected as much revenue as possible. Then Aurangzeb was unable to control this. Yes, Aurangzeb बिल्कुल control नहीं कर पाया to control this and thus peasantry suffered. किसानों को suffer करना पड़ा था. Now student, just let's come here. Our next topic is Akbarnama and Aine-Akbari. This is important. Akbar ordered one of his close friend and courtier Abul Fazl. So, who was Abul Fazl? Abul Fazl was Akbar's close friend and courtier. He was given the responsibility of writing the history of his reign. किसने responsibility दी? अकबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. किसको? टू होम? अबुल फजल को, कि वो पूरा एक राइट करे किसकी हिस्ट्री में, जो उनकी हिस्ट्री भी थी, जो उनका टाइम पीरियड था. रेन. रेन क्या होता है बेटा? पीरियड ऑफ समवन, किंग और रूलर और क्वीन. जो भी किंग है, क्वीन है या कोई रूलर्स है, उसका टाइम पीरियड कौन सा गया. So that's why Abul Fazl wrote a 3-volume history. How much he wrote a history of Akbar's reign? Yes, he wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled Akbarnama. What? Title Akbarnama. 3 पार्ट्स में उसको 3-volume हिस्ट्री पार्ट में डिवाइड किया गया. द नंबर 1 इज वॉल्यूम 1. इट डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स, यानी कि जो अकबर के पूर्वज थे, लाइक बाबर हो गया, हुमायूं हो गया. सो उनके बारे में जो भी कहा गया, एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो उनके एंसेस्टर्स थे, यानी कि बाबर, देन आफ्टर हुमायूं, देन उनके जो उनके एंसेस्टर्स थे उसके बारे में. आफ्टर दिस वॉल्यूम 2 इट रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन. सेकेंड वॉल्यूम में क्या रिकॉर्ड किया गया कि अकबर्स ने अपने टाइम पीरियड में, जो उनका टाइम पीरियड था रूलर, उनका अकबर का रूल करने का, उसमें उन्होंने क्या क्या इवेंट्स करे. देन वॉल्यूम 3 इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. It is the Aine-Akbari. It deals with the number 3 is Aine-Akbari. Which one? The number 3 Aine-Akbari. It deals with क्या what Akbar's administration, household, army. Which number 3 dealt? Yes, it dealt with Akbar's administration, household, army, the revenues, the geography of his empire, the traditional and culture of the people living in India. कौन कौन से ट्रेडिशन थे, कल्चर थे जो उनके रेन के टाइम पे हुए. Statistical details about crops, yields, prices, wages and revenue. What? Yes, detail about crop, yields, prices, wages and revenue. Okay, a closer look Akbar's policy. So, the broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book. Who? Yes, discussed by Abul Fazl in his book, The Akbarnama. As you all of you know that Abul Fazl, yes, Akbar ordered one of his close friend and courtier Abul Fazl to write a history of his reign. Then Akbar's close friend and courtier Abul Fazl, history of his reign, Akbarnama.
So that's why after Akbar's order, Abul Fazl wrote a three-volume history of Akbar's reign. And what title? Yes, title Akbarnama. First volume about Akbar's ancestors. I have already explained all these things in my previous video tutorial beta. So just take a quick recap. First volume, Akbar's ancestors. Second volume, events of Akbar's reign. And the third volume is Aine Akbari. And in Aine Akbari, about administration, household, army, revenue, geography, traditional culture of Indians, statics, crops, yields, spices, wages, and revenue. After this, Abul Fasal explained that the empire was divided into provinces and what it called? It called subas. So अबुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने ये एक्सप्लेन किया उसमें कि जो पूरा एम्पायर था वो किस में डिवाइड कर दिया गया? प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया और ईच प्रोविंसेस को क्या कहा गया? सूबाज एंड गवर्न बाय अ सूबेदार. What? Yes, governed by a Subedar who carried out both political and military functions. And each province also had a finance officer or divan. But each province also? Yes, each province also had a finance officer or divan. For the maintenance of peace and order in his province. अब peace and order भी तो maintain करनी है बेटा उनको अपने जो उनका province divide किया है. So for the maintenance of peace and order in his province, the सूबेदार was supported by other officers. जो सूबेदार थे वो other officers को क्या करते थे? Yes, was supported by other officers such as the military paymaster and what it called bakshi. In military paymaster को क्या कहा जाता था? bakshi. Then the minister in charge of religious and charitable patronage sadr. कौन थे? सद्र. सद्र थे जो आपके मिनिस्टर फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज. उनके वो व्हाट? यस, सद्र. देन मिलिट्री कमांडर्स. यस, और भी थे जो कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स थे उनके उसमें अकबर के पूरे उसमें फौजदार. वट? फौजदार. एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. वट? टाउन पुलिस कमांडर आपके कौन? कोतवाल. एंड मिलिट्री कमांडर फौजदार. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. Then, while they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, by the end of the 17th century, many nobles had built इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन. काफ़ी उन्होंने क्या किया? एंड ऑफ 17th सेंचुरी में मैनी जो उनके नोबल्स थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क कर दिया. सो their loyalties to the empire were weakened by their own self interest. इस वजह से उनकी जो क्या थी, उनकी लॉयल्टीज थी एम्पायर्स के प्रति वो क्या होगी? वीक हो गई. और वो किसने ले? देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, जब अकबर आपका कहाँ? फतेहपुर सीकरी था. and when 1570s he started discussions on religions with the ulama. किस किस के साथ उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट करा जब वो फतेहपुर सीकरी थे? उलामा, ब्राह्मण्स, जीसस प्रिस्ट, रोमन कैथलिक एंड जोरेस्ट्रियंस. दीज डिस्कशंस, यस, जो उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट करा जब वो फतेहपुर सीकरी में थे अकबर 1570s में सॉरी. दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना. कहाँ? इबादत खाना. ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स. हु वॉज इंटरेस्टेड? यस, अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स. Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony against his subject. This eventually led Akbar to the idea of Sule Kul,
विच आइडिया? यस, ये जो वो था इस वजह से उनको कौन सा आइडिया? यस, दिस इवेंचुअली लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ सुले-कुल और यूनिवर्सल पीस. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in Israel. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace. Yes, which ethics? Yes, honesty, justice, peace. That was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar. Who helped Akbar? Yes, Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governments around his idea of Sulekul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as follow. Yes, ये जो उनका principle था, this principle of governance, ये किसके was followed, किसने भी और follow करा? जहांगीर and Shahjahan. अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन. अकबर ने क्या करा कि काफ़ी जो उनके ट्रांसलेशन करे उन्होंने संस्कृत वर्क के इनटू पर्शियन में. मकताब खाना एक प्लेस थी, कहाँ करते थे वो? मकताब खाना. और यू कैन से दैट अ मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो. Yes, but Translation Bureau was also established at फतेहपुर सीकरी for this purpose. फतेहपुर सीकरी में ही एक प्लेस बनाई गई, एक जगह बनाई गई. एंड व्हाट इट कॉल्ड मकताब खाना. व्हाट? MAKTAB, मकताब खाना, जहाँ क्या था? वो ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया गया वो फतेहपुर सीकरी में. एंड यू नो द महाभारता, रामायण, लीलावती एंड Yoga Vashisht were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation. ये सारी जो थी which one? Just you can say that Mahabharat, Ramayan, Leelavati and which one? Yoga Vashisht. After this, the Razmanama, Persian translation of the Mahabharata, contains lavish illustration of the events of Mahabharata. After this, Noor Jahan influence in Jahangir court. So, पता है बेटा, Mehrunisa married the empire. Yes, who? Jahangir in 1611. When Mehrunisa married the emperor Jahangir, yes, married when? Yes, the emperor Jahangir in 1611 and received the title Noor Jahan. कौन सा title मिला उन्हें? Noor Jahan. And you know what? She remained extremely loyal and supportive to the monarch. वो बहुत ही loyal थी और supportive थी. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title on one side, and on the other side inscription stuck in the name of the Queen Begum Noor Jahan. इसलिए so that's why जहांगीर ने क्या किया, काफ़ी supportive थी वो और काफ़ी क्या थी, ऑनर देने के लिए उनके लिए. इसलिए जहांगीर ने क्या करा, वो कॉइन, यस, सिल्वर कॉइन्स करे. उस वजह से उसकी एक तरफ तो उन्होंने क्या करा, अपनी साइड, अपना नाम का वो करा. एंड देन सेकंड साइड क्वीन बेगम नूर जहां. नाउ स्टूडेंट, जस्ट लेट्स कम हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से दैट आवर लास्ट टॉपिक of this chapter is Mughal Empire in the 17th century and after. You know, the administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. वो अपना जो उनका राज्य था वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा, बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया. सो इस वजह से उन्हें काफ़ी इकोनॉमिक और कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मिली. और यू नो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आते थे डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. क्या कहते थे उन्हें? पैसों का. यू कैन लैंड ऑफ वेल्थ, पैसों का एक लैंड. बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो एप्पल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. बट उन्होंने साथ साथ फेबल लैंड ऑफ वेल्थ तो कहा, बट साथ साथ क्या कहा? स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी कहा. अब क्यों? वाई? बिकॉज द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग. क्योंकि वहाँ की जो थी ना इनइक्वालिटीज़ बहुत थी. एक तो बहुत ही ज़्यादा रिच और एक बहुत ही ज़्यादा पुअर. जिसके पास पैसा होता था, इकोनॉमिक और वो वाली वेल्थ होती थी, वो उनके पास बहुत होता था. बट किसी के पास तो बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी. सो द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द
20th century of शाहजहां reign who जो डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं 28th सेंचुरी में when किसके शाहजहां के रेन के टाइम पे शाहजहां का जो टाइम पीरियड था informers that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total of 8,000. How much? Yes, 445 in number out of a total of 8,000. हुज ये शाहजहां रेन डॉक्यूमेंट्स में हमें जो मिले हैं 20th सेंचुरी में जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो 445 थे आउट ऑफ 8,000. इट मीन्स but this small number 5.6% of the total number of mansabdar कितना था ये 5.6 mansabdar total उसका percent then received 61.5%. How much? 61.5% of the total estimated revenue. कितना जो उनका total estimated revenue में से 61.5% उनको मिलता था as salaries for themselves and their troopers. And the Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. काफ़ी वो जो उनके एक्सपेंस थे मेजर एक्सपेंस थे जो उनके सैलरीज और गुड्स मुगल एम्परर्स उनके मनसबदार थे काफ़ी बड़ी एक इनकम उस पर स्पेंड करते थे. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्चियंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस. किसका वो होता था जो उनके आर्टियंस और पीजेंट्स थे उनको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलता था बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर. बट क्या था जो कलेक्शन था किसका रेवेन्यू का वो तब भी काफ़ी इन्वेस्ट उसमें जो होते थे वो बहुत कम आता था प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास. द पीजेंट एंड द artisan. The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resource, tools and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and आर्टिसनल ग्रुप जो वेल्थियर पीजेंट्री थी और जो ग्रुप थे आर्टिसनल के द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड उनको ही ज़्यादा फायदा होता था जैसे मर्चेंट्स है बैंकर्स है. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. When yes, मुगल जो elite थे वो सब किस में हुआ है in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful center of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. So, students, for today, that's it. Thank you, all of you. Have a nice day ahead.